अच्छा जी, तो our today's topic will be from friend to foe, what caused the Iran-Pakistan conflict. ठीक है? I read this somewhere, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा I should share it with you, ताकि फिर आपका इसमें सारा 1947 से लेकर एनालिसिस आज तक का है, तो वो briefly you will get the an overview कि how you are going to handle this relationship or this conflict even. Just before coming to your class, I was listening this statement of Senator Shiri Rahman. She was saying that we have to tackle things maturely. It is not the requirement that we should retaliate immediately. थोड़ा सा strategically भी चलना पड़ेगा. अब अगर हम फौरन कर दें तो वो सही नहीं है. थोड़ा सा हमने इसको वो चीज़ों को सब्र से देखना है कि क्या है. While Iran and Pakistan have shared warm relations historically, in history we have observed that Pakistan and Iran had very good relations, right? So the current conflict is as much about internal struggles as it is about external tensions. ठीक है? आपका जो external और internal चीजें मैटर कर रही होती हैं, that is important. So Pakistan's military, when did Pakistan military carried out strike? Yesterday, right? अब क्या हो रहा है कि so after the Pakistan strike, Tehran launched similar attacks the day before is an escalation of tensions. जो हमारे हुआ और जो पाकिस्तान आर्मी के हुआ, इसकी वजह से थोड़ी सी ये आजकल हॉट टॉपिक बन गया है. And all the world is looking towards पाकिस्तान एंड ईरान. ठीक है कि ये बीइंग टू मुस्लिम कंट्रीज, अगर इधर कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो फिर ऑलरेडी तो दूसरे मिडिल ईस्ट में भी लगी हुई है वॉर, ठीक है, यूरोप में भी है और उसमें लगी हुई है, तो अब अगर ये तो एशिया में भी शुरू हो जाएगा ज़रा, तो फिर आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इजीली जा रहे हैं. और मुझे ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं क्योंकि किसी जगह पे भी nobody is trying to compromise, कोई भी किसी चीज को हजम नहीं कर रहा, हर कोई उसको फौरन रिएक्ट कर रहा है. So both countries have said the strikes were carried out against militant hideouts. Basic purpose जो militant hideouts से उनको करना था. ठीक है. So what happened? tit for tat policy अपनाई गई, जो ईरान ने किया तो फौरन पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट कर दिया. ठीक है. So the strikes come at a time of rising turmoil in the Middle East over the war between Israel and Iran-backed Hamas, which has been raging for more than 100 days. 100 days हो चुके हैं आपका इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को. ठीक है. While Iran and Pakistan have shared warm relations historically, there have been some tensions over the years. अच्छा, अभी foes were friends once. आज का दुश्मन जो है वो किसी वक्त में बहुत अच्छा दोस्त भी था. ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं कि ईरान एंड पाकिस्तान established relations on 14th August 1947, the day of the independence of Pakistan, when Iran became the first country to offer recognition. ठीक है. पहला ईरान ने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया. ठीक है. ये तो बात होगी माजी की. फॉलोइंग द ईरानियन रेवोल्यूशन, कब हुई थी ईरानियन रेवोल्यूशन? 1978 till 1979. Okay. So following the Iranian revolution 1978 to 1979, which overthrew the Pahlavi dynasty. अब आपने इसमें डिटेल पढ़नी होगी कि पहलवी जो डायनेस्टी थी उसको ख़त्म जब हुआ, then Pakistan recognized the Islamic Republic of Iran. ठीक है. तो फिर बाद में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया. Pakistan is one of the few countries where Iranian influence is positively received as per polls conducted by the Pew Research Center. क्या? A very high proportion of Pakistanis view their western neighbor positively. So polls have consistently shown that Iran's Ayatollah Khamenei has also called for the sympathy, assistance and cooperation of all Muslim nations, including
पाकिस्तान से। उस वक्त जो थी आपकी ये सब चीजें फेवर में आ रही थी। ओके, फिर कम्स टू ये आपका 1978 टू 1979 और उसके बाद का जो जी 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 बिल्कुल ठीक है। फिर वार्मिंग अप टू ईच अदर एंड वेस्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब जब कोल्ड वॉर थी तो तब भी ये दोनों ममालिक साथ साथ थे, ठीक है। क्या था इसमें? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 1945 टू 1991 both countries were part of the western bloc against the eastern bloc, ठीक है। अब वेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे ईस्टर्न के अगेंस्ट, सो दे वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एंटी कम्युनिस्ट अलायंस सेंटो। जो सेंटो थे उसके ये लोग कौन थे? अलायंसेस। ओके, स्टैंडिंग बाय इन सेपरेशन। अब ये वो वाले वाकयात हैं इस एनालिसिस में सिर्फ मोटा मोटा उन चीज़ों को देखा गया है कि कब कब मुश्किल वक्त आया था और एक दूसरे ममालिक ने किस तरह साथ दिया। अब जब हमारे पाकिस्तान वो जो बांग्लादेश जब अलग हुआ था 1971 में, तो उसमें क्या था आपका? स्टैंडिंग बाय इन सेपरेशन, ईरान एडेड पाकिस्तान in the Indo-Pakistani War of 1965 and Indo-Pakistani War of 1971. So Iran supported पाकिस्तान, ठीक है, और आपको एड भी दी गई थी, मतलब कि फाइनेंशियली भी आपको बेनिफिट्स दिए गए थे, सब चीजें थी। So both countries shared a common animosity towards Baloch separatists and cooperated in the 1917's Balochistan ऑपरेशन। अब जो 1970 का बलूचिस्तान का ऑपरेशन हुआ था उसमें भी कोऑपरेट किया गया था और ईरान ने हमेशा। अब आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि दुश्मन कभी दोस्त भी था, तो दोस्ती उसने किस तरह निभाई है, और आज अगर दुश्मनी हुई है तो वो भी आपने देखना कि उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक आपका बलूचिस्तान इशू हो गया है 1970s में। ओके, नेक्स्ट इज मिंगलिंग विद द मुजाहिदीन एंड टैकलिंग द तालिबान। ड्यूरिंग द सोवियत अफगान वॉर 1979 to 1989, Iran backed the Pakistan funded Afghan Mujahideen and Pakistan supported Iran in the Iran-Iraq War 1980 to 1988, ठीक है। जब सोवियत अफगान वॉर हुई थी उस टाइम जितने भी मुजाहिदीन उनको सपोर्ट किया ईरान ने, और जब आपकी ईरान और इराक की वॉर लगी थी तब पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया। ओके, नेक्स्ट इज पाकिस्तान सपोर्ट फॉर द तालिबान इन द थर्ड अफगान सिविल वॉर। थर्ड अफगान सिविल वॉर हुई थी आपकी 1992 टिल 1996, ओके। So Pakistan support for the Taliban in the third Afghan civil war became a problem for Iran, which opposed the Taliban controlled Afghanistan at the time. अब ठीक है, अब जब इस चीज में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो ईरान को इश्यूज हो गए कि वाई पाकिस्तान इज सपोर्टिंग अफगानीस। In the ensuing fourth Afghan civil war 1996 से 2001, Iran backed the anti-Taliban Northern Alliance. Following the 9/11 attacks, Iran and Pakistan joined the war on terror. अब जब 2001 में हो गया अटैक ट्विंस टावर पे, तो उसके बाद जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की तो दे बोथ दीज टू कंट्रीज they supported US. Okay, after the US completed withdrawal of its troops and the Taliban's return to power in the 2020s, Pakistan has stepped up cooperation with Iran to promote peace and stability in Afghanistan, with both sides arguing that it should not be used for geopolitical rivalries. अब जब तालिबान गवर्नमेंट सेटअप हुई तो पाकिस्तान और ईरान ने फिर एक मशवरा किया कि हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे ताकि रीजनल पीस आपका मेंटेन रहे और ये रीजनल राइवलरी के उसमें नहीं चला जाए।
अच्छा, अब मनी एंड मीडिएशन में क्या है कि पाकिस्तान हैज ऑफन सर्व्ड एज अ मीडिएटर इन ईरान, सऊदी अरेबिया प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब हम हमेशा ज्यादातर सुलह सफाई भी कराने में लगे रहते थे। All right. So Iran has also expressed an interest in joining the China-Pakistan Economic Corridor as part of the larger Belt and Road initiatives. So ईरान की भी रजामंदी थी कि सीपैक बने, क्योंकि सिर्फ चाइना को ही फायदा नहीं होना था, इर्द गिर्द के जितने थे वो भी इन रास्तों को इस्तेमाल करके तो फायदा उठा सकते थे। नेक्स्ट लिख रहे हैं कि both sides have continued to cooperate economically where possible and are forming alliances in a number of areas of mutual interest, such as fighting the drug trade along their border and combating the insurgency in Balochistan region. एक तो ये वाला जो खिता है इसमें ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग और ये वाली चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है उसमें, कि लीगली और इलीगली जो चीज़ें जा रही हैं, ईरानियन ऑयल जो है वो जा रहा है, डील इधर से उधर हो रही है, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी हैं प्रॉब्लमेटिक। ओके, नेक्स्ट इज बैड ब्लड ऑन द बॉर्डर। अब बैड ब्लड ऑन द बॉर्डर में क्या बात है कि विस्पर्स ऑफ डिस्कॉर्ड हैव लिंगर्ड between the two countries as the porous border became a conduit for unrest. ये आपकी recent 2024 की है, ठीक है। Accusations of harboring separatist groups stoked the flames. The events of January 24 were not born in a vacuum. Okay, they are the culmination of years of simmering tensions and a recent escalation in tit for tat accusations. Iran accused Pakistan of harboring, हाँ, अब ईरान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है, पाकिस्तान ऑफ हार्बरिंग जैश अल अदल, a Sunni militant group responsible for attacks on Iranian soil. ये पहला इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान काउंटर्ड विथ सिमिलर क्लेम्स पॉइंटिंग टू Iranian support for Baloch separatists with its borders. ठीक है, इन्होंने फिर कहा कि जो ये बलूचिस्तान वाला जो है आप इसको बहुत सपोर्ट करें, सारे बलूचिस्तान में चले जाओ, आपको सिवाय ईरानियन प्रोडक्ट्स के और कुछ मिल ही नहीं रहा होता है। ठीक है, तो ये इनका क्लेम है। थर्ड, द कॉन्फ्लिक्ट ऑन 18 जनवरी हैज इग्नाइटेड अ टेंडर बॉक्स, a stark reminder for the fragility of their uneasy coexistence. So 7 non-Iranians were killed in the explosions which hit the two locations around Iran's border city of कौन सा था सिटी? सारावान सिटी। ठीक है, सो अब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया हुआ कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स केम आफ्टर ईरान लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट जैश अल अदल, a separatist group based in Pakistan's Balochistan province, so bordering Iran. अच्छा, अब हमारी पाकिस्तान के कितनी कैजुअलिटीज हो गई हैं? 3 women were injured and I think 2 minor girls they got martyred. All right. Achha, then what was the action of Iranian foreign minister? What is the name of Iran's foreign minister? Hussein Amir, ये लिख लें, Hussein Amir Abdullahian. So what was his statement? He phoned his Pakistani counterpart on 17 January in an apparent move to ease tension between the neighbors, even as Islamabad insisted it had the right to respond to the illegal act by Tehran. अब ज़ाहिर कोई भी illegal या without informing या कुछ ऐसा होगा तो हर कंट्री अपना डिफेंस का राइट तो रखती है, नो मैटर। देखें, आपका अगर अपना घर का पड़ोसी भी जो है आपके शायद जितने अच्छे मर्जी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर उनके घर का कोई भी एक मेंबर आपके घर के ड्राइंग रूम का शीशा तोड़ के जाएगा या पत्थर मारेगा तो डेफिनेटली आप भी एक वक्त के लिए उस पर जाएंगे कि भाई क्या मसला हो गया है, क्यों किया है तुमने ऐसा, हाल उनसे बहुत अच्छे आपके रिलेशन हो। लेकिन कुछ भी आप अगर किसी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाएंगे तो पूछना तो बनता है ना कि भाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई डिड यू डू ऑल दिस।
आपने मिसाइल से अटैक कर दिया है, आपकी 4-5 कीमती जानें बैठे बिठाए ज़ाया हो गई हैं विदाउट एनी इन्वॉल्विंग इन कॉन्फ्लिक्ट, और वो सारा अचानक से बस आपने कर दिया. सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान? एम्बेसडर्स हट गए हैं, यहाँ वाला भी वापस चला गया, उधर वाला भी मुल्क में वापस आ गए हैं. ठीक है. हाँ अच्छा, जैश अदल इज डेजिग्नेटेड as a foreign terrorist organization by the US, and this Sunni militant group operates along predominantly Shiite Iran's porous border with Pakistan. So it has launched multiple attacks on Iranian security forces, most recently a December assault on a police station that killed 11 people. अब ये जो जैश अदल था, ये भी कुछ ना कुछ माइनर अटैक्स ईरान पे हो रहे थे, जिसकी वजह से इनको टारगेट किया गया है. So Pakistan became the second of Iran's neighbors to react to an attack by the country on its territory. अच्छा, अब now what happened on earlier 16 January? Iraq criticized an Iranian missile hit on an alleged Israeli spy base in Iraqi Kurdistan. ठीक है, उधर से इराक पे भी छोटे छोटे हमले चल रहे हैं, उधर से इधर भी चल रहे हैं. तो ये ईरान क्या मैसेज देना चाह रहा है? ओके, सो मेकिंग बेट ऑन द बॉर्डर एंड द ब्लैंकेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स. अब क्या जियोपॉलिटिक्स के हवाले से क्या है कि जियोपॉलिटिक्स मेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान मोर कॉम्प्लेक्स डिस्पाइट strained ties with the West, particularly the United States. Iran has a key role in the Middle East. On the other hand, Pakistan continues to maintain strategic alliance with the US and Saudi Arabia, which has occasionally resulted in differences in their stances on regional and international matters. So the geopolitical situation is made more intriguing by the triangular interactions between Iran, Pakistan and Saudi Arabia. So Saudi Arabia and Pakistan have always had close connections, whereas Iran sees Saudi Arabia as a foe in the region. अब ईरान जो है वो सऊदी अरब को इस रीजन में क्या समझ रहा है? दुश्मन. देखें, विजिट सारा कुछ हो रहे होते हैं, वो जो विजिट होता है कोशिश तो कर रहे हैं बट स्टिल वो अभी तक चल रहे हैं. अच्छा जी, आगे सुनिए क्या है इसके अंदर. It puts Pakistan in difficult balancing act as it tries to maintain close ties with Saudi Arabia without upsetting Iran. ठीक है, आज जब वो दुश्मन उसको कह रहा है तो अब पाकिस्तान जो है मुश्किल स्टेट पे आ गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने अच्छा रिलेशन ईरान के साथ भी बचा के रखना है और सऊदी अरेबिया के साथ भी बचा के रखना है. ठीक है. So given the common border with Afghanistan and the security issues it poses for both neighbors, Pakistan and Iran's relation with the Taliban ruled country are greatly influenced by its instability. अब जब इन दोनों में इंस्टेबिलिटी हो जाएगी तो जो तालिबान है वो उस तरफ वाली साइड पे प्रॉब्लम हो जाएगा. So diplomatic dexterity and wise decision making are paramount for Iran and Pakistan to navigate this delicate triangle in order to prevent tensions from rising and harming रीजनल सिक्योरिटी. इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा सा समझदारी से करें, वरना जो ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है ये बहुत ही खतरनाक बन सकता है. कौन सा ट्रायंगल? पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया और ये बीच में तालिबान किधर गए? ओके, फाइटिंग फाइनेंशियली. अभी फाइनेंशियली क्या फाइट हो रही है पाकिस्तान और ईरान की? Pakistan's Arab allies to invest $50 billion in 5 years, or Iran has none. Last year in September, what happened that Pakistan said that Saudi Arabia and the United Arab Emirates would invest $25 billion each in his
cash-strapped country within 5 years. Sectors such as mines, अब किन के sectors को देख रहे हैं? Mines, minerals, agriculture, defense production and information technology would receive the investment according to the statement of Pakistan government. So the Saudi and UAE investments are part of a new strategy for economic revival to increase foreign direct investment in Pakistan. अब UAE और Saudi Arabia, they are intending to invest in our countries. अब Pakistan doesn't want to escalate its relation with these two countries. ठीक है, वहाँ वो हो रहा है. अब क्योंकि जब आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपके 3-4 सेक्टर्स अगर उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी. So Pakistan is scrambling to deal with a critical balance of payments crisis. So the country of about more than 241 million people needs billions of dollars in foreign exchange to repay international debts and bridge its trade deficit in the current financial year. अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें कर्जा वापस करना है, तो जितना ज्यादा भी हमारे पास पैसा आएगा मुल्क में, we will be able to return that कर्जा. ठीक है, अब ना कर्जा वापस होगा और ना हम थोड़े से सोल्यूशन की तरफ आएंगे. Okay, so what is Islamabad implementing long delayed economic reforms in line with IMF requirements, leading to a historic increase in energy prices when inflation is already hovering around 29%. अब हमारे साथ सिर्फ प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, हम अपनी ही चीज़ों को और महंगा करके दे देंगे तो ताकि हमारे पास थोड़ा सा रेवेन्यू और हो जाए तो हम कर लेंगे. लेकिन अगर टैक्सेस जो लोग नहीं पे कर रहे हैं, अगर वो लोग भी प्रॉपर पे करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल है हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा सेफ हो सकता है जो हमारे अपने ही पाकिस्तानी दे सकते हैं. तो कुछ परसेंट हमारे उसमें से कमी हो जाएगी, तो हमें फिर इतना फॉरेन उस पर नहीं देखना पड़ेगा. So the tough reforms have triggered almost daily nationwide protests, bloated electricity bills and soaring fuel prices. अभी तो फ्यूल प्राइस कम हो गई हैं, लेकिन जब ये समर चल रही थी आपकी लास्ट समर 2023 की, उस टाइम आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में आपके जो थे वो इश्यूज होने शुरू हो गए थे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ा दिए. ठीक है, अब फिर जब आपका ये मिलिट्री मूवमेंट आया है तो इसने और प्रॉब्लम कर दिया है. Okay, so both Iran and Pakistan are grappling with their own demons. Iran reeling under the weight of the sanctions and domestic strifes seeks to consolidate its power and project strength. Pakistan battling internal insurgencies and economic wars tries to assert its strategic relevance. अब पाकिस्तान का तो हमेशा से मसला सिंस 1947 से यही रहा है कि उसको तो अंदरूनी मामलात ही सांस नहीं लेने दे रहे, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करें. नेक्स्ट इज द स्पेक्टर ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द इक्वेशन. Iran's ties to Russia and China counterbalance Pakistan's close alliance with the United States and Saudi Arabia, transforming the regional equation into a complex geopolitical chessboard. ठीक है, so the immediate future remains shrouded in uncertainty. अब हम फ्यूचर ना कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, अब what lies ahead, अब आगे होना क्या है. While an all-out war seems an unlikely scenario, the potential for further skirmishes and escalation cast a dark shadow over the region. So the path forward requires delicate diplomacy, trust building measures and the willingness to address the root causes of conflict. अब ये है आपका कि ये मसला डिप्लोमेटिकली हल हो सकता है. अगर आपने बम फोड़ दिए तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी. ये सारे पॉइंट्स हैं. अब देखें, जब
आपका ये कॉन्फ्लिक्ट वाला इस तरह ये जो रीसेंट है इसके साथ थोड़ा सा आपने हिस्टोरिकली जब चीज़ों को एनालाइज कर देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। और एंड आपने बात अच्छे से डिप्लोमेटिक टर्म्स पे ही ख़त्म करनी है क्योंकि जंग होना अफोर्ड नहीं हो सकता है यहाँ पे इस रीजन में, खतरनाक है, खतरनाक हो गई ये बात। ठीक है, कुछ है ही नहीं। जंग को सपोर्ट करने के लिए भी तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए ना, वो नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? जो आपके पास तो नहीं, हम किसी तरीके से भी किसी का नाम, हम इस स्टेज पे आ चुके हैं पाकिस्तान के ना हम किसी को वो वाली जो मिसाल है कि हम ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे पलट पा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम।